اردو ناول انتقام قسط نمبر 163 بائے اردو داستان۔ پلیز راہیلہ، رونا تو بند کرو۔ جائے وہ کنویں سے کچھ دور جانے کے بعد آصف نے گاڑی ایک جانب کر کے روکی اور مسلسل آنسو بہاتی راہیلہ سے عاجزانہ لہجے میں بولا، کیسے بند کروں؟ آج پھر میں اپنی سہیلی کو بیچ منجھدار میں چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ کیسی دوست ہوں میں کہ مشکل وقت میں بھی کبھی دوست کے کام نہیں آ پائی۔ وہ خاموش ہونے کے بجائے اور بھی شدت سے رونے لگی۔ انسان کے اختیارات محدود ہیں، تم اس کی مدد اس لیے نہیں کر سکی کہ یہ تمہارے بس میں نہیں تھا۔ آدمی جہاں خود بے بس ہو وہاں بار بار خود کو مورد الزام ٹھہرا کر خام خواہ کے گریڈ کا شکار کیوں ہو؟ آصف نے اسے سمجھایا، مجھے یہ سب باتیں سمجھ نہیں آ رہی آصف، مجھے بس یہ پتا ہے کہ میں اپنی سہیلی کو موت کے منہ میں چھوڑ کر خود محفوظ ہو چکی ہوں۔ وہ واقعی اپنے احساس ندامت سے جان چھڑانے میں ناکام تھی۔ وہاں رک کر بھی تم اپنی جان قربان کرنے سے زیادہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتی تھی۔ اب کم از کم اسے بچانے کی کوشش کر سکتی ہو۔ وہ کیسے؟ اس نے جلدی سے آصف کی طرف رخ موڑ کر دیکھا۔ آنسو سے تر رخسار، بھیگی بھیگی پلکیں اور رونے سے سرخ پڑی ناک دیکھ کر آصف نے ایک سردہ بھری، مجھے تو تمہاری سہیلی سے جیلسی فیل ہو رہی ہے۔ مطلب میری بیگم کو مجھ سے زیادہ کسی سے اتنی شدید محبت ہے؟ یہ خام خواہ کا تقابل ہے۔ انسان کی زندگی میں صرف ایک شخص نہیں ہوتا کہ وہ بس اس سے محبت کرتا جائے۔ آپ بھی تو مجھ سے ہٹ کر اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ رونا بھول کر اس سے لڑنے کو تیار ہو گئی۔ آصف نے اس ادا پر زور سے قہقہ لگایا، میری سہیلی اغوا ہو گئی ہے اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ راہیلہ نے مزید برا بنایا، میری ایسی مجال، میں تو بس ذرا تمہیں رونے سے دھونے سے نکال کر دوسرے ٹریک پر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو یہ تیوریاں چلا کے لڑاکا بیوی کے روپ میں کتنی اچھی لگ رہی ہو۔ اب میں لڑاکا بھی ہو گئی۔ کل تک تو آپ کہتے تھے کہ راہیلہ مجھے تم سب سے زیادہ اس لیے پسند ہو کہ سارے خاندان میں تم سے زیادہ سادہ لو اور سلجھو لڑکی نہیں دیکھی میں نے۔ راہیلہ کو اپنے بارے میں دی جانے والی رائے پسند نہیں آئی اور باقاعدہ بحث پر اتر آئی، بے شک تم لڑاکا بیوی کے روپ میں اچھی لگ رہی ہو، لیکن ہم مزید وقت ضائع کرنے کے بغیر کام کی بات کرتے ہیں۔ آصف نے یکدم سنجیدگی اختیار کر لی، کیا مطلب؟ راہیلہ اس کی بات پر چونکی، تمہارا موبائل کہاں ہے؟ آصف نے جواب دینے کے بجائے سے سوال کیا۔ وہ راہیلہ نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا لیکن پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ میرا موبائل تو بشریٰ کے پاس ہی تھا، میں نے سوچ کر اس کے پاس رکھوا دیا تھا کہ اسے راستے میں ضرورت ہوئی تو استعمال کر لے گی۔ تمہیں یاد ہے کہ تمہارے موبائل پر ٹریکر لگا ہوا ہے؟ او مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے کہ میرے موبائل کے ذریعے جو بشریٰ کو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ راہیلہ یکدم جذباتی ہو گئی اور آصف کا بازو جھنجھوڑتے جوش سے بولی، پلیز آصف، اس کی لوکیشن ٹریس کریں اور چلیں اسے بچائیں۔ میں کوئی جیمز بونڈ یا ایجنٹ 007 نہیں ہوں کہ خود میدان عمل میں اتر کر کچھ تو کے پشتے لگا دوں۔ ہم تھانے چل رہے ہیں، وہ رپورٹ کریں گے، آگے پھر جو کرنا ہوا وہ پولیس کرے گی، آصف نے سمجھایا۔ راہیلہ ماضی میں پولیس کے کردار کی وجہ سے زیادہ مطمئن تو نہیں تھی، لیکن اس کی عقل میں آصف کی دلیل آ گئی کہ واقعی وہ ایک عام سا شہری بشریٰ کو لے جانے والے خطرناک جرائم پیشہ افراد کے خلاف خود کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے تھانے ہی چلتے ہیں، کیا پتہ اللہ سبب بنا ہی دے۔ امید و بیم کی ملی جلی کیفیت میں اس نے آصف کی تائید کی تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھانے پہنچنے پر انہیں سیدھا اندر لے جانے کے بجائے ہیڈ محرر کے کمرے میں برآمدے میں انتظار کے لیے بٹھا دیا گیا۔ وہاں بیٹھے انہیں اندر ہونے والی گفتگو سنائی دے رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، دیکھو اصغر استاد، ہم بھی جانتے ہیں اور تم بھی جانتے ہو کہ وہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا تم بیان کر رہے ہو۔ یہ گیس لیکیج اور اتفاقی حادثے وغیرہ کی کہانی میڈیا کے لیے تو رہنے دو اور ہمارے سامنے سچ اگلو۔ اگر تم نے سچ نہ اگلا تو ہم اگل دیں گے۔ وہاں تہہ خانے میں تم لوگوں نے خفیہ قید خانہ بنا رکھا تھا اور ممنوع بور کا اسلحہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ ابتدائی جملے ہی اتنے چونکا دینے والے تھے کہ ان کی پوری توجہ اندر جاری گفتگو کی طرف مبذول ہو گئی۔ کیسے اگلو گے سچ؟ تمہارا منہ بند کر کی قیمت ادا کر رکھی ہے میں نے۔ یہ یقیناً اصغر استاد تھا جس نے طیش زدہ لہجے میں دھمکی کا جواب دیا۔ صاحب کا خیال ہے کہ منہ بند رکھنے کی وہ قیمت ناکافی ہے۔ یقیناً وہ ہیڈ محرر ہی تھا جو اصغر استاد نامی شخص سے معاملہ طے کر رہا تھا۔ لالا کے ہوتے تم لوگوں کی ہمت نہیں تھی کہ ایک بار بات طے ہونے کے بعد دوبارہ زبان کھول سکو، لیکن اب جب دیکھو تب منہ کھولے بیٹھے ہوتے ہو۔ اصغر نے شکوہ کیا، لالا لالا تھا اصغر استاد، کیا تم لالا کی برابری کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ یہ دعویٰ کروں تو بے فضول، لیکن تم بھی یاد رکھو کہ لالا کا شگیر اتنا ہلکا نہیں کہ تم جب چاہو اسے اپنی انگلیوں پر نچانے لگو۔ اپنے صاحب کو بولنا ہاتھ ہلا رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن پچھتانا پڑے۔ پولیس والے کی بات کا جواب دیتے اصغر استاد کی آواز بتدریج بلند ہوتی چلی گئی۔ وہ پہ اندر سے ایسی آواز آئی تھی جیسے کوئی زور سے کرسی کھسکا کے اپنی جگہ سے حرکت میں آیا ہو۔ اگلے ہی لمحے ایک شخص بگولے کی طرح ہیڈ محرر کے کمرے سے برآمد ہوا۔ آصف فوری طور پر فیصلہ لیتے اس کے پیچھے لپکا، ایکسکیوز می۔ اصغر کے پیچھے دوڑتے اس نے اسے پکارا، کیا ہے؟ وہ پہلے ہی غصے میں تھا، ایک اجنبی کو اپنے سر پر سوار دیکھ کر مزید جھنجھلایا اور کاٹ کھانے والے لہجے میں بولا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن وہ بات یہاں نہیں ہو سکتی۔ آصف نے اپنی آواز دبا کر مدعا بیان کیا، جس پر اصغر اسے گھور کر دیکھا اور ساتھ ہی ایک نظر راہیلہ پر ڈالی
जो खुद भी आसिफ के पीछे वहां तक चली आई थी। ठीक है भाई, मेरी गाड़ी में आ जाओ, लेकिन याद रखना फजूल बात नहीं करने का, अपना दिमाग साला बहुत पहले ही शॉर्ट है। इसने मशरूत इजाजत दी, जिस पर वो दोनों शुक्रिया अदा करते उसके पीछे चल पड़े। बाहर आकर वो इस बड़ी सी गाड़ी की तरफ बढ़ा जिसे वो लोग थाने में दाखिल होते वक्त भी देख चुके थे। गाड़ी में ड्राइवर मौजूद था और एक दूसरा शख्स भी। वो शख्स असगर उस्ताद को आते देखकर फुर्ती से नीचे उतरा और पिछला दरवाजा खोला। इसके बगले होलिस्टर और मखसूस चाल ढाल से जाहिर था कि वो असगर के बॉडी गार्ड के फराइज इंजाम दे रहा है। तुम दोनों अंदर बैठो। असगर ने खुद गाड़ी में बैठने के बजाय इन दोनों में व्यू को इशारा किया और खुद घूमकर अगली पैसेंजर सीट की तरफ खुलने वाले दरवाजे तक पहुंचा। तू नीचे उतर खैरू, मुझे इन दोनों से कुछ बात करनी है। दरवाजा खोलकर निश्चित संभालते हुए इसने ड्राइवर को हुक्म दिया, जिसकी जाहिर है इसे तामील करनी थी। वो गाड़ी से बाहर निकला और बॉडीगार्ड के साथ जा खड़ा हुआ। इन दोनों में से किसी ने कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन पूरी तरह चौकन्ना इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखे हुए थे। इनकी नजरों में कुछ कुछ राहिल और आसिफ के लिए शक भी लहरा रहा था, लेकिन वही बात थी कि असगर कुछ कहने से कासिर थे। अब बोल। असगर अपने साथियों की फिक्रमंदी से बेनियाज आसिफ से मुखातिब था। आप लाला ईसा के साथी हैं? आसिफ ने बात करने से पहले एक बार तस्दीक कर लेना मुनासिब समझा। अपन काले चोर का साथी है, तुझको अपने से जो बात करनी है, वरना फूट यहाँ से। असगर का मिजाज अभी तक पूरी तरह एतदाल पर नहीं आया था। मैं बुशरा गुलजार की सहेली राहिला और ये मेरे शोहर आसिफ हैं। हमें बुशरा की जुबानी इल्म हुआ था कि लाला ईसा और माज भाई के मसाइल हल करने के लिए इनकी मदद कर रहे हैं। थाने में हमने आपकी और हेड मुहर्रर की गुफ्तगू सुनी तो हमें अंदाजा हुआ कि आपका ताल्लुक लाला ईसा से है। इसे हमने मुनासिब समझा कि जिस मसले पर मदद तलब करने थाने आए हैं वो आपसे बयान कर दिए जाए तो ज्यादा बेहतर नतीजे निकल सकते हैं। इस बार रहीला ने हिम्मत करके गुफ्तगू में हिस्सा लिया और अपना तारुफ करवाने के साथ साथ बहुत कुछ बोलती चली गई। बुशरा से कब मुलाकात हुई आपकी? असगर ने सारी बात सुनी तो चौंक के बेताबी से पूछा। रहीला ने हवाले ऐसे दिए थे कि अपना सारा गुस्सा और झुंझुलाहट भूल कर तजस्सुस में मुब्तला हो गया था। कल से लेकर अब से कुछ देर पहले तक वो हमारे साथ ही थी, लेकिन मेरे खुदा, कल से हम पागलों की तरह से ढूंढते फिर रहे हैं और वो अपनी सहेली के पास थी। असगर बिलबिला ही उठा, लेकिन उसका फोन क्यों बंद था? माधुर लाला ने कितनी बार उसका नंबर ट्राई किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। पहले रद्दमल के बाद इसने पूरी तौर पर जहन में मौजूद अहम तरीन सवाल दागा। इसका फोन तो गिरकर टूटने की वजह से नाकारा हो गया था। इसने कोशिश की कि मेरे फोन से कॉल करके माँ से बात कर सके, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। वो सुबह खबरों में आप लोगों की रहायशगाह पर आग लगने की खबर सुनकर बहुत परेशान हो गई थी और सबकी खैरियत जानना चाहती थी। शायद वो जज्बात में सीधी आतिशज़दगी का शिकार होने वाले आपके रहायशगाह पर पहुंच जाती, लेकिन आसिफ ने रोका कि इसमें खतरा हो सकता है। इसके बाद इसने फैसला किया कि वापस महनाज के पास चली जाए तो शायद इसकी कुछ खबरें मिल सके। इस सिलसिले में इसकी बात महनाज से भी हुई थी। रहीला ने इसे तफसील से आगाह किया। महनाज से बात हुई थी? कब, किस वक्त? असगर के लिए एक चौंका देने वाली बात थी। मुश्किल से 2 ढाई घंटे ही गुजरे होंगे, लेकिन महनाज तो आज सुबह से अस्पताल में दाखिल है। किसने इसके अपार्टमेंट में घुसकर इसे बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस बेचारी की ज़हनी हालत तो इतनी खराब है कि डॉक्टर इसे हमसे भी किसी बात करने की इजाजत नहीं दे रहे। असगर का ये इंकिशाफ राहीला के होला देने वाला था। फिर वो कौन था जिसने बुशरा महनाज समझकर मैसेज पे बात करती रही? इसने बुशरा को बताया था कि इसके मोबाइल का माइक खराब हो गया, इसलिए वो कॉल पर बात नहीं कर सकती। बुशरा ने इसे अपने अपार्टमेंट पर वापसी के बारे में भी आगाह किया था। इसने जर्द रंगत के साथ सारी बात बताई। बात बिल्कुल साफ है राहीला, महनाज का फोन किसी और के कब्जे में है। इसने चालाकी से काम लेकर बुशरा को इस बात से आगाह नहीं होने दिया। यूँ इसे आसानी से मालूम हो गया कि बुशरा कब और किसके साथ आ रही है, इसलिए तो इन लोगों ने मुकम्मल प्लानिंग से घात लगाकर इसे इतनी आराम से छाप लिया। यह तजिया करने वाला आसिफ था, जिसे सुनकर असगर उछल ही पड़ा। क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि बुशरा को अगवा कर लिया गया है? बिल्कुल यही बात है। हम उसी हादसे की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आए थे कि इत्तफाकन आपसे सामना हो गया और हमने सोचा कि पुलिस के मुकाबले में आपसे मदद तलब करना ज्यादा सूदमंद होगा। ये तो सबसे पहले बताने वाली बात थी यार। अब तो जाने इसे कहां से कहां पहुंचा दिया गया होगा। असगर ने माथे पर से पसीना पूंछते हुए परेशानी का इजहार किया। हमारे पास उस तक पहुंचने के लिए क्लू है। राहीला का मोबाइल बुशरा के पर्स में है और मोबाइल पर ट्रैकर लगा हुआ है। ट्रैकर की मदद से आपको इस तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। आई एम सॉरी, मैं एक आम इंसान हूँ, इसलिए खुद ऐसी कोशिश नहीं कर सका और पुलिस की मदद के लिए दौड़ा आया। आसिफ ने बात के आखिर में नदामत का इजहार किया। कोई मसला नहीं यार, तुम जो क्लू लेकर आए हो वो भी बहुत जबरदस्त है। असगर ने बेतकल्लुफी से इसे तसल्ली देकर मजीद बोला, ऐसा करो तुम लोग मेरे साथ चलो, ट्रैकर वगैरह की तफसील तुम बताना, बुशरा को बाजियाब कराने की कार्रवाई हम करेंगे, जैसी आपकी मर्जी। आसिफ अगरचे सारी जिंदगी गुंडे बदमाशों से दूर रहा था, लेकिन इस वक्त इनकार की गुंजाइश नहीं थी। अपनी गाड़ी की चाबी दो। असगर ने पीछे की तरफ झुककर आसिफ की तरफ हाथ बढ़ाया। आसिफ ने जेब से चाबी निकालकर इसकी हथेली पर रख दी। असगर ने इशारे से ड्राइवर को करीब बुलाया और चाबी से थमाते हुए बोला, इनकी गाड़ी लेकर तुम और जफर पीछे आओ, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। साथ भी खुद खिसक ड्राइविंग सीट पर आ गया। ड्राइवर चाबी इग्निशन में ही लगी छोड़ गया था। इसे घुमाते ही गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया। गाड़ी चलती इससे पहले ही ड्राइवर अपने साथी को आवाज देते हुए आसिफ की गाड़ी की तरफ दौड़ा। इसकी और बॉडीगार्ड की तरफ भागदौड़ से बेनियाज असगर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो जानता था कि वो दोनों साई की तरह इसके पीछे तक आएंगे। आप यहाँ?
अगरचे वो अंदाजा लगा चुका था कि इसे यू मैडम एक्स की गिरफ्त से जाने से कबल ही उचक लेने वाले लोग कौन थे, लेकिन इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि यू पाकिस्तान में अचानक जन से मुलाकात हो जाएगी। मैं एक सरकारी दौरे पर सफारती वफद के साथ आई हूँ। वो वफद जिस एजेंडे के साथ आया है इसमें मेरा ज्यादा किरदार नहीं, लेकिन मेरी हुकूमत ने मुझे कुछ अहम मामला तय करने की जिम्मेदारियां सौंपी हैं और तुम भी हमारा एक अहम मामला ही हो। जनहू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी यहाँ मौजूदगी की वजाहत दी। मेरे लिए कतई गैर मुतवक्को है, खुसूसन जिस तरह आपके आदमियों ने मुनज़्ज़म कार्रवाई करके मुझे मैडम एक्स के आदमियों की तहवील से निकाला है। मैं दूर दूर तक इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता था। शायद इसलिए तुम ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम करके हथियार डालने के लिए तैयार हो गए थे। जनहू के लहजे में हल्की सी तंज की आमेजिश थी। हरगिज़ नहीं, माज इस बात पर तड़प उठा। मैंने शिकस्त तस्लीम नहीं की थी, बस आज़म के हुसूल के लिए एक शॉर्टकट का इंतखाब किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन्हें अभी हमें मैडम एक्स और उसके सरपरस्तों से एक तवील जंग लड़नी है। वो सजर इस तवील जंग के इख्तिताम का इंतजार शायद न कर सके। वो जिस कंडीशन में है, इसे इस वक्त में सबसे बड़ा रिलीफ यही दे सकता था कि इसके बेटे को उस तक पहुंचाने का इंतजाम कर दूं, और वो हो गया। इसने जनहू को अपने अमल की वजाहत दी। हमारे हिसाब से जज्बाती इकदाम था। अपनी सरकत के नतीजे में तुम गैर मुय्यना मुद्दत के लिए भी मैडम एक्स की गिरफ्त में जा सकते थे। ऐसा होने की सूरत में एक बड़ा और अहम मिशन इल्तवा का शिकार हो जाता। जनहू ने इसकी वजाहत पर अपनी राय दी। मेरे लिए आजम को इसकी मां से मिलाना ही सबसे अहम मिशन था। इसने धीमी आवाज में एतराफ़ किया। मैं तुम्हारी कैफियत समझ रही हूँ, लेकिन याद रखो कि जब हम बड़े काम करते हैं तो हमें अपनी तरजीहात का तयन करते वक्त गैर जज्बाती होकर अकली बुनियाद पर सारा हिसाब किताब करना पड़ता है। एक फर्ज जो हमें कितना ही अजीज हो, इसकी खातिर पूरी कौम के मुफाद को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। हमने तुम्हारी ख्वाहिश पर पाकिस्तान भिजवाया जरूर था, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम हमारे साथ एक अहम मिशन पर कमिटमेंट कर चुके हो। जनहू ने इसे तंबीह की। आई एम सॉरी, वाकई मैं फरामोश कर बैठा था, लेकिन आप मेरी कैफियत नहीं समझ सकती, क्योंकि आप मेरी जगह है नहीं और आपको इस आजमाई से नहीं गुजरना पड़ा जिससे मुझे गुजरना पड़ा है। इंसान की अजीज तरीन हस्ती मौत के मुंह में हो तो इसकी सोचने समझने की सारी सलाहियतें जवाब दे जाती हैं। वो अब भी अपने अमल को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। बेशक मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ, लेकिन ये मत कहो कि मुझे आजमाइश से नहीं गुजरना पड़ा। दुनिया में अपनी औलाद को खो देने की आजमाइश से बढ़कर कोई आजमाइश नहीं होती। मैं इस आजमाइश से गुजरी हूँ, और फिर मेरे ऊपर यह आजमाइश भी आई है कि अपने बेटे के कत्ल में अहम तरीन किरदार अदा करने वाली मुजरिमा को सजा दिलवाने के बजाय इस बात पर गौर करूँ कि इस मुजरिमा को इसके जुर्म की सजा दिलवाने से ज्यादा मुल्क और इंसानियत का मुफाद अहम है। जनू ने कहा तो माज को याद आ गया कि जनू का बेटा सोनिया और इसकी टीम के एक चीनी होटल से प्लांट किए गए बम से होटल बचाने की अपनी जान हार गया था। सोने के खिलाफ इन लोगों के पास ठोस सबूत मौजूद थे, लेकिन तब इसने इस्रार किया था कि वो इसराइल के मिशन पर सोनिया को अपने साथ रखना चाहता है। इसने सोनिया के हक में दलाइल देते हुए इन लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि नहायत कम उम्री में मखसूस अंदाज से तरबियत पाने के बायस सोनिया वो जराइम करने पर मजबूर हो गई थी जो आज खुद इसके लिए बायस शर्म है। इसने सोनिया के ताइब हो जाने और इसराइल की सरजमीन पर कारआमद साबित होने तक के भी दलाइल दिए थे, और उस वक्त जनहू ने जज्बाती होकर ये नहीं कहा था कि वो हर हाल में अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार मुजरिमा को सजा दिलवाना चाहती है। इसने सोचने और इस मामले को परखने के लिए वक्त लिया था। इस मीटिंग में शीन याही भी इनके साथ मौजूद था, और शीन याही ने सोनिया को माफी देने की शदीद मुखालफत की थी, लेकिन जनहू ने इसे कहकर खामोश करा दिया था कि पहले इस बात की परख की जाएगी कि सोनिया में आने वाला इनकलाब हकीकी है या वो द्रोगोई से काम ले रही है, फिर ही इसके बारे में कुछ जाती या कोई हतमी फैसला किया जाएगा। आई एम सॉरी। सामने से दलील ऐसी आई थी कि इसके पास सर झुकाकर माफी मांग लेने के सिवा कुछ चारा नहीं था। इट्स ओके, मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहती थी कि हमने सोनिया की पर के मराहिल तय कर लिए हैं, और हमारे माहिरीन में से अक्सरियत की राय है कि सोनिया की तरफ से हमें धोखा दिए जाने का कोई इम्कान नहीं है। इस अहम तरीन मरहले के तय होने के बाद हमारी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द मिशन पर काम शुरू कर दिया जाए, और जाहिर है वो इसी सूरत में मुमकिन है कि तुम यहाँ की उलझनों से अपनी जान छुड़ाकर वापस चीन आओ और मिशन पर जाने की तैयारी करो। तुम अगर मैडम एक्स के कब्जे में चले जाते तो मामला बहुत ज्यादा उलझ जाते, इसीलिए हमारा दखल देना नागुज़ीर हो गया था। वो समझेगी कि मैंने इससे वादा खिलाफी की है और आज़म की आज़ादी दिलाने के बाद खुद को भी अपने आदमियों के जरिए आज़ाद करा लिया है। इसके कुछ समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जानते हो कि तुमने धोखा नहीं किया, बस इतना ही काफ़ी है। इंसान को दूसरे से ज़्यादा अपनी नज़रों में शफाफ होना चाहिए। जनहू ने इसे ज़िंदगी का एक और सबक दिया। आप ठीक कह रही हैं। वो मुतमिन होकर मुस्कुराया, फिर इस्तफसार किया। आज़म कब तक सदर के पास पहुंच जाएगा? बहुत जल्द। तुम्हारे दोस्त विक्की से हमारा राब्ता हो चुका है, और इस वक्त विक्की से आज़म को अपने तहवील में लेने का मरहला तय हो रहा है। लेकिन साइंस सदाकत शाकिर रही का मामला तो खटाई में पड़ गया होगा। मैं चाहता था कि आज़म के अलावा सजल की अपने दीगर घर वालों से मुलाकात हो जाए। एक ऐसी मरीज है जिसे डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं। आखिरी वक्त में अपनों के करीब रहे तो इसके लिए अच्छा है।
ये अल्फाज अदा करते हुए इसकी आवाज़ कांपने लगी थी, लेकिन हकीकत से नजरें तो बहरहाल नहीं चुराई जा सकती थी। अब हमने अपना हाथ इस मामले में डाल दिया है तो समझो सारे मसले हल हो गए हैं। पहुंच जाएंगे सदाकत शाह भी अपनी बेटी के पास। जन ने इसे तसल्ली दी। थैंक यू सो मच। जितना कुछ आपने किया है, इसके बाद समझ लें कि मैं आपका बेदाम गुलाम हूँ और वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो आप चाहें। वो जन की बात सुनकर जज्बाती हो गया, लेकिन फिर कुछ याद आने पर बोला, मेरे यहाँ कुछ अहम काम बाकी हैं। बुशरा और उसके मुजरिम बाजिल की तलाश करके बाजिल को बुशरा की हस्ब ख्वाहिश सजा देनी है और जाने से पहले एक बार अपने घर वालों से भी मिलना है कि मालूम नहीं दोबारा हमारा मिलना मुमकिन हो या नहीं। हो जाएगा ये सब भी। हमने तुमसे वादा किया था कि पाकिस्तान में तुम्हारे मसाइल हल होने के बाद ही तुम्हें कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे। इत्मीनान रखो, हम अपना वादा भी पूरा करेंगे। जनहू से इसे इत्मीनान दिलाया और फिर होंठों पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, यह तुम्हारे कामों को आसान बनाने के लिए हमने तुम्हारे लिए एक मदद का इंतजाम किया है। मैं चाहती तो रिहाई दिलवाने के बाद तुम्हें तुम्हारे मौजूदा ठिकाने पर जाने की इजाज़त दे देती, लेकिन यहाँ बुलाने का बुनियादी मकसद यही था कि मैं तुम्हारी किसी से मुलाकात करवाना चाहती थी। वो कौन है? माज मुतजस्सिस हुआ। चंद मिनट ही की बात है, वो पहुंच जाएं तो आमने सामने दोनों का तारुफ करा दूंगी। जनहू ने एक बार फिर अपनी भेद भरी मुस्कुराहट का जादू जगाया। माज को अगरचे तजस्सुस था, लेकिन इसने इसरार नहीं किया। मुश्किल से चंद ही मिनट गुजरे थे कि जनहू को मेहमान की आमद की इत्तला दी गई। आओ चलकर मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। जनहू ने अपनी नशिस्त छोड़ दी और माज से मुखातिब हुई। माज पुरजोश था, इसके पीछे हो लिया। जब तक वो लोग बाहर बरामदे तक पहुंचे, मेहमान अपनी गाड़ी से उतर चुका था। टूपी सूट में मलबूस पुरवकार शख्सियत के मालिक इस दरमियानी उम्र के शख्स ने पहली नजर में ही माज को मुतासिर किया। वो नपे तुले कदमों से चलते इनकी तरफ बढ़े तो माज ने कुछ मायूसी सी महसूस की।